Hello everyone. This video forms the last part of our topic of income under the head of house property. Here we will discuss some theoretical topics. Okay, we'll start from some points that are to be remembered while you are calculating interest on borrowed capital. I hope you have gone through the topic of interest on borrowed capital, which was covered in the last video. These are some points that you need to take care of while calculating the same. This might cover a bit of your theoretical part also. Okay, the first point in the notes read, no deduction is allowed for any brokerage or commission for arranging the loan. Okay, so this means that, for example, you have got your housing loan sanctioned from say HDFC Bank. Okay, now your loan is sanctioned, but there is some processing charges, processing fees that you need to pay. There is a commission that the bank charges from you in the initial stage. So those particular charges, the brokerage charges, the commission charges, the processing fees are not deducted in those amounts are not allowed for deduction in your interest from borrowed capital. It plainly covers only the interest that you are paying towards the loan. Okay, next point reads, interest on fresh loan taken to repay the original loan is allowed as deduction. Okay, this is an interesting point. I'll explain you what does it mean. For example, you had got your loan sanctioned as said previously through HDFC Bank. Okay, later on, after a few months, you get an offer from the SBI Bank. Okay, for example, आपने आपका लोन HDFC बैंक से सेंक्शन कराया था at the rate of 9.5%. Okay, you got your housing loan of 50 lakhs sanction from HDFC Bank at the rate of 9.5% per annum. Okay, you are paying the interest to the bank. Okay, and after a few months, or say after a year, the State Bank of India tells you that we offer you a housing loan of the same amount at the rate of 9.3%. Okay, for the same amount. Now यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है. या एक्चुअली प्रैक्टिकली आप देखने जाओ तो इट इज़ जस्ट 0.2%. ओके, बट व्हेन द अमाउंट इज सो ह्यूज, इवन 0.2% मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके, यू माइट सेव ऑन अ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ योर इंटरेस्ट पर मंथ. ओके, सो आपने ऐसा सोचा कि चलो मेरे ऐसा करने से अगर मेरे 2-3 हज़ार रुपये महीने बच जाते हैं तो वाई नॉट. सो व्हाट डू you take a loan from SBI, ठीक है, of 50 lakhs, and you repay the housing loan of HDFC that you had taken previously. Okay, so in other words, what are we doing? We are just swapping the home loan, okay, from one bank to the other bank. That is, we are changing our banking relation regarding the housing loan. Okay, now what does government say? That if you are doing so, then also the interest that is charged on the न्यू बैंक दैट इज़ ऑल्सो अलाउड फॉर डिडक्शन. क्योंकि ये जो आपने SBI से भी जो लोन लिया है, इट इज़ रिगार्डिंग योर हाउस प्रॉपर्टी ओनली. ओके, सो अगर आपने ऐसे हाउसिंग लोन स्वॉप किया है, देन ऑल्सो यू विल बी अलाउड अ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स द न्यू बैंक ऑल्सो. ओके, that was about the second point. The third point says interest on unpaid interest is not deductible. Okay, this is an interesting point. You have been paying your housing loan interest for very nicely for 10 months. Okay, and due to some unavoidable reasons you couldn't pay the 2 month of interest of the loan to this new bank. So what happens, the bank decides to चार्ज यू ऑन एन इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट. ठीक है, मतलब आपने जो इंटरेस्ट नहीं पे किया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने का बैंक डिसाइड करती है. ध्यान से समझिएगा, आपने 2 महीने का इंटरेस्ट नहीं भरा है बैंक का. ठीक है, सो आपको बैंक चार्ज करेगी, फाइन करेगी एन इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट. सो व्हाट डज द गवर्नमेंट से? द गवर्नमेंट सेज दैट
you will not be allowed a deduction on this interest which is laid on the unpaid interest that, I mean, you could not pay, the interest that you could not pay. Okay, this is the third point. The fourth point says that interest on borrowed capital payable outside India shall be allowed as deduction if and only if these 2 points hold true. What does this mean? ऐसा कभी कभी होता है, देर आर some residents who choose to take a loan from outside of India. ठीक है, now if they have taken a loan from outside India, they will naturally pay the interest from outside India. ठीक है, now the government says that interest that you are paying outside India is allowed for deduction if and only if these 2 points hold true. Okay, what does the point say? टैक्स ऑन द सेम हैज़ बिन पेड एंड डिडक्टेड एट सोर्स. गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आप बाहर से आपने लोन ली है इंडिया के, तो आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, लेकिन उस इंटरेस्ट पे पहले आपको टैक्स भरना पड़ेगा. ठीक है, यू आर द कॉन्सेप्ट ऑफ TDS. I hope you know what is tax deducted at source, TDS. So here the concept of TDS comes into picture. The government says that it is okay if you are paying interest outside India, but first of all you need to pay a tax on that particular interest, and then only that interest will be allowed for deduction. Okay, the second point says that in respect of such income any person in India may be treated as agent. ठीक है, अगर आप उस इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं भर रहे तो ठीक है, लेकिन देयर शुड बी सम पर्सन इन इंडिया जो उस इंटरेस्ट पे इंडिया में टैक्स भर रहा हो. सो देयर इज़ वन क्लियर पॉइंट दैट द गवर्नमेंट नीड इज टेलिंग यू इज इट इज़ वेरी मच ओके इफ़ यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड पेइंग द इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया. सब ठीक है, लेकिन इस इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन तभी मिलेगा इफ़ you are paying a tax on that particular interest. Once you pay a tax on that interest, then that interest is allowed for deduction. Okay, so these were some brief points that you need to take care while calculating interest on borrowed capital. This might even form a theoretical part of your exam. Okay, let us move on. Treatment of unrealized rent. This is an extremely important topic. This one and the other that we are going to cover after this is important. Okay, majorly forms the theoretical part. Treatment of unrealized rent. The heading reads that treatment of unrealized rent. Okay, first you need to actually know what is unrealized rent. Unrealized rent होता क्या है वो आपको पहले समझना पड़ेगा. For that I'll make you understand this with an example. Okay, yeah. Suppose you have a property, house property, and you have lent it on rent. आपने उसको रेंट पे दिया है from the month of April to March. ठीक है, मान लीजिए अप्रैल 2019 से मार्च 2020. ठीक है, फॉर दिस 1 year you have given this property on rent. ठीक है, एंड यू हैव डिसाइडेड दैट द एक्चुअल रेंट शुड बी 10,000 पर मंथ. जो किराएदार है उसको 10,000 पर मंथ किराया देना पड़ेगा. यू फाउंड अ किराएदार ऑल्सो एंड ही इज स्टेइंग इन योर हाउस एंड पेइंग रेंट रेगुलरली. ठीक है, द टेनेंट इज पेइंग अ रेगुलर रेंट. 10 महीने तक उसने रेंट पे किया है, 10,000 पर महीना. लेकिन इन द लास्ट 2 months ही सेज दैट आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे पास अभी पैसा नहीं है. जैसे ही पैसे का इंतज़ाम होता है आई विल श्योरली पे द रेंट टू यू. ठीक है, आप एक काम कीजिए, आई विल पे द फुल रेंट इन February एंड. तो दैट you thought that ठीक है, in good faith you are thinking that okay he has been paying a regular rent to me, तो 10 महीने का रेगुलर दिया है तो बाकी के 2 महीने का भी दे देगा. तो तब तक उसको आप ट्रीट करते हो आउटस्टैंडिंग रेंट की तरफ. ठीक है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस थिंग दैट अभी ये साल चल रहा है. ठीक है,
फरवरी में आप उसके पास जाते हो कि भैया क्या हुआ हमारे रेंट का, यू नो द ईयर इज़ अबाउट टू एंड एंड यू हैवंट गिवन मी द रेंट येट. सो ही सेज़ दैट सर अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है, आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़े और दिन दे दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ मार्च तक. ठीक है, मार्च एंड तक. तो you waited till March and yet he did not give the outstanding rent of 2 months. ठीक है, अब साल बदल गया. ठीक है, अभी उसने 31 मार्च के तक तो आपको कोई रेंट दिया नहीं है जो आउटस्टैंडिंग था. ठीक है, 20,000 2 month रेंट, 20,000 इज़ स्टिल आउटस्टैंडिंग. ही हैज़ नॉट पेड यू अंटिल 31st of March 2020. उसने एक भी रुपया इस 20,000 में से पे नहीं किया है. अब तक आप इसको आउटस्टैंडिंग ट्रीट कर रहे थे. तारीख बदल गई, महीना बदल गया, साल बदल गया. 1st of April 2020 यू केम इनटू अ न्यू ईयर. ठीक है, अब तक उसने आपका रेंट नहीं भरा है. अब इस आउटस्टैंडिंग रेंट को हम बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट. ठीक है, अब आपकी इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन है उसमें आप एक्चुअल रेंट तो 10,000 पर मंथ 12 महीने के हिसाब से ही लोगे. वाई? बिकॉज you yourself have let out the property for 12 months. ठीक है, आपने प्रॉपर्टी 12 मंथ्स के लिए लेट आउट की है, तो आप एक्चुअल रेंट 12,000 के 12 मंथ के हिसाब से ही गिनोगे. दैट इज़ 1,20,000. द टेनेंट हैज़ नॉट पेड यू द रेंट. ठीक है, तो वो आ जाएगा अनरियलाइज्ड रेंट में. ठीक है, अब महीना और साल बदल गया तो आप उसके पास जाते हो 15 अप्रैल को, बोलते हो कि भाई अब ना आप शांति से बात करते हो. यू बीइंग अ नाइस पर्सन, ही बीइंग अ नाइस पर्सन, यू टेल हिम टू लीव द हाउस. ठीक है, अगर आपने मेरा पैसा नहीं दिया है तो इट इज़ ओके, बट नाउ यू प्लीज़ लीव द हाउस, वेकेट द हाउस. ठीक है, जाते जाते उसने आपको 5,000 रुपये दे दिए. ठीक है, while vacating the house, the tenant gives you 5,000 rupees. So unrealized was 20,000. उसमें से उसने 5 दे दिए. बाकी जो बचे हैं, जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ 15,000 rupees you couldn't get from him. ठीक है, यू couldn't get a balance of 15,000 rupees from him. इसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट. जो रेंट आप रियलाइज़ नहीं कर पाए, जो रेंट आप ले नहीं पाए हो अपने किराएदार से, उसको बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट. सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंट प्रैक्टिकली इन इनकम टैक्स. ठीक है, आप 10,000 हर महीने के हिसाब से 12 महीने के लिए ही लोगे इन योर इनकम टैक्स कैलकुलेशन. वाई? बिकॉज यू हैव लेट आउट द प्रॉपर्टी फॉर 12 months. बट यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है भैया, जो रेंट रियलाइज़ नहीं हुआ है उसको एक्चुअल रेंट में से हम कर देंगे माइनस. ठीक है, सो द अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ रुपीज़ 15,000. ठीक है, आप कर दोगे डिडक्ट, और बाकी का जो बैलेंस बचा है हो गया 1,05,000. 1,05,000 हो गया नेट एक्चुअल रेंट. ठीक है, ये आप लोगे आपके कैलकुलेशन के आगे के कैलकुलेशन के लिए. यू विल टेक दिस रेंट एज एक्चुअल रेंट. ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट दैट यू नीड टू डू in your question if there is any problem of unrealized rent given to you. ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट को आप माइनस कर दोगे एक्चुअल रेंट में से, और जो आएगा वो होगा आपका नेट एक्चुअल रेंट, नेट AR. नेट AR को आप आगे की गिनती के लिए लोगे टू डिटरमाइन योर GAB and then NAB and then deductions and other things will follow. I hope you have understood कि अनरियलाइज्ड रेंट होता क्या है. ठीक है, जब तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में होते हो, अंटिल यू आर इन द सेम फाइनेंशियल ईयर इन विच यू हैव गिवन द प्रॉपर्टी फॉर रेंट, तब तक वो रेंट आपका आउटस्टैंडिंग होता है. ठीक है, बट इफ़ द सेम रेंट इज़ नॉट क्लियर्ड इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, दैन दैट आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाता है अनरियलाइज्ड रेंट. ओके, so
So what is the treatment of unrealized rent? I hope you have now understood what is unrealized rent. We'll see the theoretical part. Actual rent shall not include rent which was payable but not paid by the tenant and so proved to be lost and irrecoverable. ठीक है, एक्चुअल रेंट शेल नॉट इंक्लूड, एक्चुअल रेंट की गिनती में आप वो रेंट नहीं लोगे जो टेनेंट को पे करना था लेकिन उसने पे नहीं किया और अब वो इररिकवरेबल है, आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे. ठीक है, वो इट इज़ प्रूव्ड टू बी लॉस्ट. सो जो अभी मैंने आपको बताया, यू विल डिडक्ट अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम द एक्चुअल रेंट, और जो बाद में आता है नेट एक्चुअल रेंट उसकी बात करते हो. अब ये आप डिडक्ट कब कर पाओगे, उसकी कंडीशंस ये हैं. टेनेंसी इज़ बोनाफाइड. ठीक है, टेनेंसी इज़ बोनाफाइड मीन्स टेनेंसी वॉज इन गुड फेथ. ठीक है, इट इज़ प्रूव्ड दैट टेनेंसी वॉज इन गुड फेथ, लेकिन अब किराएदार किराया नहीं दे पा रहा है और नहीं दे पाएगा कभी भी. तो भैया आप बोलोगे गवर्नमेंट से कि भाई मैंने तो 12 महीने के लिए लेट आउट की थी प्रॉपर्टी, बट नाउ द किराएदार इज़ नॉट एबल टू पे मी 2 महीने का किराया. सो इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ अनरियलाइज्ड एंड हेंस यू कैन डिडक्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज़ वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी. ठीक है, आपका जो किराएदार है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है, वो आपका रेंट नहीं दे पा रहा है, तो आपने उसको प्रॉपर्टी खाली करने के लिए बोल दिया. यू हैव टोल्ड हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, लीव द प्रॉपर्टी, और if he is not leaving then you have taken adequate steps that he takes, you know, he leaves the property. Legal जो भी steps बनते हैं, you have taken those steps and you have made sure that the defaulting tenant vacates your property. ठीक है. The third point is the defaulting tenant does not occupy any other property of the assessee. Now this is the case when example से मैं समझाऊंगी. You own a house, okay, and a shop also. You found someone who is ready to take both on rent. ठीक है, there is one person, Mr. X. ठीक है, वो बोलता है आपको कि आई विल टेक सर, आई विल टेक योर हाउस ऑल्सो ऑन रेंट फॉर माई रेजिडेंशियल पर्पज़, और मुझे अपनी दुकान चलानी है किराने की, तो फिर मैं आपकी शॉप भी किराए पे, आई मीन आई विल टेक द शॉप ऑन रेंट. ओके, नाउ अ फ्यू मंथ्स पास एंड ही इज़ बीन पेइंग द रेंट सक्सेसफुली, घर का रेंट भी और दुकान का रेंट भी. ओके, 8-9 महीने निकल गए. 10वें महीने पे वो आपको बोलता है कि मैं सर क्या है कि मैं शॉप का किराया तो आपको दे दूँगा, दुकान का किराया दे दूँगा, लेकिन घर का किराया दे नहीं पाऊँगा. ठीक है, ऐसा 8 महीने उसने दिया दोनों किराया, लेकिन अब वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ शॉप का किराया दे पाऊँगा और घर का किराया नहीं दे पाऊँगा. सो दिस इज़ वेयर यू शुड टेक केयर, दिस इज़ वेयर यू शुड बिकम कॉशियस कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शॉप का किराया तो दे देगा लेकिन घर का नहीं दे पा रहा है. इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू पे द रेंट देन ही शुड नॉट पे रेंट ऑफ बोथ द प्रॉपर्टीज़. वाई ओनली वन प्रॉपर्टी? एंड इफ़ यू एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो टेल्स दैट भैया यहाँ पे आपको केयर लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चल सकता है कि वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी का किराया दे रहा है और एक प्रॉपर्टी में डिफ़ॉल्ट कर रहा है. ऐसा करके आप खुद का तो नुकसान करवाओगे और हमारा इनकम टैक्स में भी नुकसान करवाओगे. सो उससे अच्छा है कि यू टेल हिम टू वेकेट बोथ द प्रॉपर्टीज़. ओके, ठीक है भाई, आपसे किराया नहीं भरा जा रहा है तो आप दुकान को भी खाली कर दीजिए, घर को भी खाली कर दीजिए. ओके, दिस इज़ द एग्जाम्पल. द लास्ट point is the assessee has taken all reasonable steps to initiate legal proceedings. Please read here initiate. ठीक है, initiate. The assessee has taken all reasonable steps to initiate proceedings for recovery of the unpaid rent or satisfies the assessing officer that legal proceedings would be useless. ठीक है,
आपने शायद आपका घर 2-5 साल से किराए पे दिया है, ठीक है, 2 साल से वो अच्छे से भर रहा है किराया, लेकिन अब तीसरे साल में वो गड़बड़ कर रहा है, किराया टाइम पे दे नहीं रहा है, आपने उसको वेकेट करने को बोला है, प्रॉपर्टी स्टिल इज़ नॉट वेकेटिंग द प्रॉपर्टी, एंड नाउ वी आर टेकिंग सम लीगल स्टेप्स अगेंस्ट हिम दैट भैया किराया दो, और उसके बाद you just fulfill my unrealized rent. You have gone to the court, done a case against him to recover your unrealized rent. Okay, तो SSE has taken all reasonable steps to initiate legal proceedings for the recovery of unpaid rent. या फिर ये नहीं हो पाए तो आपको असेसिंग ऑफिसर को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है उसके खिलाफ आप लीगल प्रोसीडिंग्स करके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. जैसे गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अ पर्सन एज इंसॉल्वेंट, ठीक है, अगर भैया वो पर्सन ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, उसके पास पैसे है ही नहीं, तो आपका किराया देने के लिए उसके पास पैसे आने भी नहीं वाले हैं, तो आपको लीगल प्रोसीडिंग्स करने से फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, ठीक है, वो नहीं दे पा रहा है. अनदर केस में भी the tenant was only one, मतलब in his family he had no family and उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में you will have to satisfy, you will have to make the assessing officer believe that legal proceedings will be useless in such case. Okay, now how would a sum of such unrealized rent, how do you calculate, प्रैक्टिकली ये कैलकुलेशन कैसे होगा अगर आपके एग्ज़ाम में पॉपअप हो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन, तो हाउ डू यू डू दिस. फर्स्ट आई वुड लाइक यू पीपल टू लुक एट द क्वेश्चन. देयर इज़ अ हाउस प्रॉपर्टी जिसका म्यूनसिपल वैल्यू इज़ 1 लाख रुपीज़, फेयर रेंटल वैल्यू इज़ गिवन टू बी 1.2 लाख रुपीज़, ठीक है, एक्चुअल रेंट ऑफ 15,000 पर मंथ इज़ देयर, एंड you have been told in the example itself that there is an unrealized rent of rupees 18,000. The property is let out for 10 months and self-occupied for 2 months. ठीक है, easy है. मैं आपको बताऊंगी GAV तक की कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है, उसके बाद तो you know have to calculate further, ठीक है. Now municipal value and fair rental value, my ER. So see, this is a case, second case of let out property. We have discussed 3 cases of let out property, out of which this is a second case, let out for some months and self occupied for some months. Okay, तो इसमें हम ER लेते थे पूरे साल का, ठीक है. इफ़ यू रिमेंबर वी आर टेकिंग ER ऑफ द होल ईयर, तो ER क्या आएगा, हायर फ्रॉम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो बड़ा होगा, ठीक है, दैट इज़ 1.2 लाख. यू कंपेयर 1.2 लाख विद द एक्चुअल रेंट. ना एक्चुअल रेंट 15,000 पर मंथ के हिसाब से आपको 10 महीने तक की कैलकुलेशन करनी है. सो दिस बिकम्स 1,50,000, ठीक है, इन द आउटर कॉलम 1,50,000. Now you have been given that there is an unrealized rent, तो आप सीधा उसे माइनस कर दोगे 18,000. 1,32,000 का नेट एनुअल रेंट आ गया, ठीक है. नाउ विल कंपेयर दिस एंड दिस, जो बड़ी होगी वो होगी आपकी GAV 1,32 लाख, ठीक है. ER और AR में से जो बड़ा होगा वो होगा आपका gross annual value. So your gross annual value is 1.32 lakh. You got GAV. So यहाँ से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो NAV की, उसके बाद 30% डिडक्शन एंड थिंग्स विल फॉल. ओके, आई जस्ट नीडेड टू शो यू कि GAV कैलकुलेट कैसे होगी इन केस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, वो ऐसे होती है, ठीक है. ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू recovery of unrealized rent and areas of unrealized rent. This also is a good theoretical topic. Okay, first of all we'll see what is actually recovery of unrealized rent. ये दोनों वर्ड भले ही साथ में लिखे हैं लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है. I really hope that you people are very much familiar with the word arrears. Okay, so recovery of unrealized rent and
एरियर्स ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। पहले हम देखते हैं अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी में। I'll make you understand with an example. Suppose you have let out your property from the month of April to the month of March, okay, in the financial year 2019-20, keeping an actual rent of 10,000 rupees per month. ठीक है, the tenant has paid a 10-month rent, रेगुलरली पे किया है 10 मंथ का रेंट, लेकिन 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जैसे हमने आगे के एग्जाम्पल में डिस्कस किया है, आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल टू मेंटेन अ यूनिफॉर्मिटी। तो 2 मंथ का किराया उसने दिया ही नहीं है, आपने उसको आउटस्टैंडिंग लिख के रखा है कि भाई आउटस्टैंडिंग है, लेकिन साल ख़त्म हो गया है। साल ख़त्म हो जाने के बाद भी उसने किराया नहीं दिया, तो you told him to vacate the property. While vacating the property, he pays you rupees 5,000, but still you are left with an unrealized rent of 15,000. ठीक है, घर छोड़ते वक्त वो बोलता है कि ठीक है साहब, 20,000 तो मैं आपको दे नहीं पाऊँगा, लेकिन 5,000 दे रहा हूँ। 5,000 देने के बाद भी देयर इज़ एन अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ रुपीज़ 15,000। तो उस फाइनेंशियल ईयर में आप के एक्चुअल रेंट यहाँ फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगी कि आप लोगे 12 महीने के लिए ही। वाई? बिकॉज यू हैव लेट आउट द प्रॉपर्टी फॉर 12 मंथ्स, सो एक्चुअल रेंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन अ 12 मंथ बेसिस ओनली। ठीक है, तो वो होता है 1,20,000, उसमें से अनरियलाइज रेंट आप माइनस करोगे 15,000, यू गेट 1,05,000 रुपीज़। ये हो गई बात फाइनेंशियल ईयर 1920 की। ठीक है, अभी आप डिसाइड करते हो कि भैया ये तो कोई बात नहीं हुई, मेरा तो 15,000 का लॉस हुआ, तो आप चले जाओगे कोर्ट, केस कर दोगे उस पर और चले जाओगे कोर्ट। यू गो टू द कोर्ट एंड टेल देम टू डू अ जस्टिस एंड यू टेल देम कि भैया ये कोई बात नहीं हुई, मेरे 15,000 का नुकसान हो, तो मुझे अपना अनरियलाइज्ड रेंट दिलवाइए। कोर्ट में केस चला 1 साल तक, मान लीजिए 1 साल आ गया जजमेंट देने में। जजमेंट में कोर्ट ने कहा आपके किराएदार को कि भैया ये आपको 15,000 का किराया भरना पड़ेगा। ठीक है, सो योर टेनेंट पेज यू 15,000, बट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 1921 में आपके यहाँ रह रहा था, फिर आपने केस किया फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जजमेंट आया, कोर्ट ने उसको आदेश दिया कि भैया ये नहीं चलेगा, आपको जो आपने किराया नहीं दिया है वो आपको भरना पड़ेगा, और आपके टेनेंट ने आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो अनरियलाइज्ड रेंट था वो आपको दे दिया है। तो ये हो गया रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, वो कैसे होगी नोट्स में देखिए। The amount of arrears of rent received from a tenant or unrealized rent realized subsequently from a tenant, as the case may be, by an assessee shall be deemed to be the income from house property in respect of financial year in which the rent is received or realized, and shall be included in the total income of the assessee under the head of income from house property. ठीक है, ये लंबे चौड़े स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि जिस साल में आपका अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज हुआ है, रिकवर हुआ है, उस साल में वो वाला रेंट होगा टैक्सेबल। ओके, दैट in this particular example, if I tell you the 15,000 rupees that we recovered from our tenant after suing him in the court in the financial year 2021, तो ये जो 15,000 रुपये है वो मेरे फाइनेंशियल ईयर 1920 में नहीं, लेकिन 2021 में वो टैक्सेबल उसको माना जाएगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है, whether the assessee is the owner of the property or not in the financial year। अब मान लीजिए कि उस साल आपने किराएदार को भगा दिया क्योंकि उसने रेंट नहीं दिया था, और थोड़े समय के बाद आपने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपके पास वो किराएदार आया और बोला कि भैया केस हो गया है मेरे पे, तो अब कोर्ट का ये वर्डिक्ट है दैट आई हैव टू पे यू 15,000।
तो दिस इज़ माई रेंट विच आई कुड नॉट पे यू एंड दिस इज़ द 15,000। अब इस ईयर में आप उसके उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो आप ऐसे बच नहीं जाओगे। यू कैनॉट से दैट कि अकॉर्डिंग टू द चार्जिंग सेक्शन आई एम नॉट the owner of the property right now, so I will not pay a tax on this 15,000 rupees. Okay, you can't say that whether or not the assessee is owner of the property in that particular financial year। लेकिन उस साल जब आपने दिया था मकान किराए पे, तब तो आप उसके ओनर थे। ये वो रेंट है जो उस साल आप रिकवर नहीं कर पाए थे और अब रिकवर हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट से दैट बिकॉज आई एम नॉट एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन दिस ईयर, आई विल नॉट बी पेइंग अ टैक्स इन दिस ईयर। ओके, सिंस इट इज़ सेड इन द चार्जिंग सेक्शन, बड़ी ही होशियारी से आप ये नहीं बोल सकते हो, ठीक है। A sum equal to 30% of such areas of rent or unrealized rent shall be allowed for deduction। अभी हम 30% ऑफ NAV तो हमेशा डिडक्शन में देते ही है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, आप जो अनरियलाइज्ड रेंट होता है उसका भी 30% इज़ अलाउड फॉर डिडक्शन। तो आपको जो 15,000 रुपये मिले हैं, ठीक है, 15,000 पूरे के पूरे विल नॉट बी टैक्सेबल। 15,000 का 30% जो होता है दैट विल बी टैक्सेबल। सो कितना होता है 15,000 का 30%, this is 10,000 rupees, 10,500। okay, so your rupees 10,500 will be taxable in the year फाइनेंशियल ईयर 2021। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही आपको टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये अनरियलाइज्ड रेंट जो आपने रिकवरी की है वो 2021 में हुई है, तो टैक्सेबल भी 2021 में होगा, लेकिन उस पर 30% डिडक्शन मिल सकता है। तो यू क्लेम अ 30% डिडक्शन ऑन 15,000 रुपीज़, दैट अमाउंट्स टू रुपीज़ 10,500। सो ये 10,500 रुपये जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपको टैक्सेबल रहेंगे अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली। ओके, सो ये हो गया एरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है, सॉरी, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। नाउ विल सी व्हाट इज एरियर्स ऑफ रेंट। आई होप यू आर प्रिटी मच फैमिलियर विद द वर्ड एरियर्स, लेकिन आई लाइक to explain the same to you by the help of an example. I am Miss Y, ठीक है, and I own a good property, a good commercial property in the heart of the city. Okay, and I give this property on rent to a bank X, ठीक है, बैंक X है, उसको मैं रेंट पे देती हूँ। मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और आई फिक्स द रेंट ऑफ रुपीज़ 5 लाख पर ईयर, ठीक है, फॉर 5 years, let us keep 4 years. Okay, so I have a good property which I have given on rent to a bank X at the rate of 5 lakh rupees पर ईयर, ठीक है। पर ईयर बैंक को मुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 4 साल की एग्रीमेंट, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, चलो। इन द सेकेंड ईयर ऑल्सो दे हैव पेड मी रुपीज़ 5 lakhs. In the third year, they come to me to hand over a check of rupees 5 lakhs for this year's rent, and I tell them that देखो अभी तो मार्केट में रेट्स बढ़ गए हैं, ठीक है, किराए के रेट्स बढ़ गए हैं, सो नाउ यू विल हैव टू पे मी रुपीज़ 5 लाख, जो आप पहले पे करते ही थे वैसे ही, और एडिशनल 10% ऑफ दैट,
क्योंकि मार्केट में रेट बढ़ गया है तो मैं वही किराया मैं आपसे नहीं ले सकती हूँ, और मुझे 5 लाख के ऊपर और 50,000 रुपये, दैट इज़ 10% ऑफ 5 lakhs आई वॉन्ट दिस ऑल्सो इंक्लूडेड इन माई रेट। तो बैंक ने बोला कि ऐसी हमारी कोई बात हुई नहीं थी, ना ही ऐसा कुछ एग्रीमेंट में लिखा है, ठीक है, तो हम आपको ये 50,000 नहीं दे सकते हैं। ऐसा कोई एग्रीमेंट में देयर इज़ नो मेंशन ऑफ दिस 50,000 रुपीज़ और 10% इंक्रीमेंट फ्रॉम थर्ड ईयर henceforth, so we'll not be paying you 50,000 rupees. 5 lakh is okay. We'll give you a check of 5 lakh rupees. So you decide to go to court for this 50,000 rupees. आप कोर्ट में जाते हो, केस करते हो, कोर्ट का जब डिसीजन आता है तब फाइनेंशियल ईयर बदल जाता है और कोर्ट डिसीजन देती है कि बैंक विल हैव टू पे यू 50,000 रुपीज़, ठीक है। द कोर्ट सेज दैट गिव्स अ वर्डिक्ट इन योर फेवर, सेज दैट हाँ ठीक है, मार्केट में रेट्स भी बढ़ गए हैं, पहले बात की गई थी वो ठीक थी, लेकिन अब तो बैंक शुड पे यू 5 लाख रुपीज़ एंड एडिशनल ऑफ 10% ऑन दोज 5 लाख अमाउंटिंग टू 50,000 रुपीज़। बट अब ये क्या हो गया, इस साल तो उन्होंने आपको 5 लाख भर ही दिए थे, आपको पे कर ही दिए थे, लेकिन कोर्ट का वर्डिक्ट आने में साल चेंज हो गया और उन्होंने आपको बोला, उन्होंने बैंक को बोला कि ठीक है आपको इनको 50,000 और देने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो 50,000 है इसकी गिनती जो है वो आप उस साल में नहीं कर सकते हो। यू कांट डू इट इन द फाइनेंशियल ईयर 1920 बिकॉज ये 50,000 आपको कब मिला है, ईयर 4 में, जब बैंक ने आपको 5 लाख रुपए भी दिए, ये 50,000 भी दिए, और जैसा कि कोर्ट ने कहा था कि मार्केट रेट के हिसाब से अब बढ़ाए जाएंगे आपके किराए के पैसे। तो ये जो 50,000 रुपये आपको ईयर 4 में मिले हैं उसको हम बोलेंगे एरियर्स ऑफ सैलरी, ओके, सॉरी एरियर्स ऑफ रेंट। जैसे एरियर्स ऑफ सैलरी होती है वैसे हैं ये एरियर्स ऑफ रेंट। दिस 50,000 इज रिसीव्ड बाय यू इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर according to the decision made by the court, since you are receiving it in another financial year, तो इसको हम बोलेंगे एरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट भी वैसे ही हम करेंगे जैसे अनरियलाइज्ड रेंट की करेंगे, ठीक है। यू विल मेक अ ट्रीटमेंट ऑफ एरियर्स ऑल्सो इन द सेम वे एज वी डिस्कस द प्रीवियस 3 पॉइंट्स इन द केस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। जिस फाइनेंशियल ईयर में यू गॉट द एरियर्स उसी फाइनेंशियल ईयर में इट विल बी टैक्सेबल, अ डिडक्शन ऑफ 30% इज अलाउड on that areas of rent, and whether or not you are the owner of the property in whichever year you are receiving the area, irrespective of that you will have to pay a tax on that, okay। ये हो गया areas and recovery of unrealized rent। The last topic of our chapter will be income from following cases is not taxable, so there are some cases in which income is not taxable। ये आपका MCQ का अच्छा सा पार्ट हो सकता है। आज का पूरा टॉपिक देखने जाए तो can form a good part of your MCQ and theoretical questions। फटाफट से we'll have a look at these points wherein income from these 6 cases is not taxable। A building that is in the immediate vicinity of a agricultural land is used as a dwelling unit or a storehouse or other building। फार्म हाउस, ठीक है। फार्म हाउस से जो इनकम आती है वो आपकी टैक्सेबल नहीं गिनी जाएगी। एक बिल्डिंग है जो आपने अपने खेत में बनाई है जिसमें आप कुछ स्टोर कर रहे हो या फिर उसमें रह रहे हो, ठीक है, थोड़े दिनों थोड़े महीने के लिए, तो उसको यू विल नॉट बी कंसिडरिंग, उससे जो इनकम आती है दैट यू विल नॉट बी कंसिडरिंग टैक्सेबल। सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, ओके, सेल्फ एक्सप्लेन्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ओके। आई एम हैविंग 1 floor इन अ कमर्शियल बिल्डिंग एंड आई एम यूजिंग इट फॉर माई क्लासेस, ओके। मान लीजिए कि मैं अपने टैक्सेशन के क्लासेस उस बिल्डिंग में उस बिल्डिंग के उस पर्टिकुलर शॉप में चलाती हूँ,
तो उससे जो इनकम आती है दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जैसे आगे बात की है हमने, प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और लोकल अथॉरिटी, प्लेस ऑफ एक्स रूलर, ये राजा महाराजा के समय की बात है, ठीक है। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस इन ऑक्यूपेशन ऑफ एक्स रूलर शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑल्सो देर वर मैनी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, इट वॉज वेरी मच पॉसिबल, और ऐसा केसेस भी हैं जहाँ पे एक रूलर के पास एक से ज़्यादा पैलेसेस थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आप अपने अगर आपके पास 3 पैलेस है तो 3 में से एक पैलेस में से जो आपकी इनकम आती है उसको हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी के 2 पैलेस पे तो यू हैव टू पे टैक्स, ठीक है। सो ओनली 1 पैलेस out of all the palaces that the ex-ruler owns shall be exempted from tax. So this is all that we needed to cover in the topic of income from the head of house property. Hope you have understood everything. Happy learning.